Now next question, question number 6. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equals to square of ratio of their corresponding medians. ट्राइंगल के जो मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है एरिया ऑफ रेशियोज. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर two similar triangle. It is given, and AD and PM its median, and AD and PM its median. Median is a line drawn from the vertex bisect the other opposite side. Opposite side को bisect करती है, two equal part में divide. So it means BD is equals to DC and QM is equals to. Now to prove, क्या प्रूफ करना हमें? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस. मीडियन के स्क्वायर की इक्वल प्रूव करना है AD अपॉन PM का होल स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. नाउ वी स्टार्ट प्रूव. वी हैव टू गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स रेशियोज आर इक्वल. सो AB अपॉन AB corresponds to PQ, AB upon PQ equals to BC upon QR, and third side AC upon PR, and their corresponding angles also equal. Angle B is equals to angle Q, angle C is equals to angle R, and angle P is equals to angle A. Now first member, second member and third member, from first and second, first और second को equal रखिए. Then we get from first and second AB upon PQ is equals to BC upon QR. BC is the twice of BD because D is the midpoint of BC. So it means you write it twice of BD. And same as it is, QM is twice of QR. So 2BD upon 2QM, 2 से 2 cancel. This implies we get AB upon PQ is equals to BD upon QM. नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM दोनों को सिमिलर प्रूव कीजिए. ट्रायंगल ABD एंड PQM के अंदर ये आपके पास वेरिफिकेशन आ गई. टू साइड्स की रेशियो B अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM वेरीफाइड, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q गिवन बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर है. सो बाय SAS सिमिलरिटी ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM. When triangles are similar, then it means their corresponding sides ratios are equal. So AB upon में PQ equals to BD upon में QM equals to AD upon PM. Now first और third को equal रख लिए. इसकी हमें आवश्यकता है. From first and third we get AB upon PQ is equals to AD upon PM. Now triangle ABC and PQ are similar given है. So इनकी एरिया का जो रेशियो है ABC, area of ABC upon area of PQR equals to square of their correspondent sides. So it means AB upon PQ का whole square. Now replace AB upon PQ in AD upon PM because AB upon PQ is equals to AD upon PM. So we replace AB upon PQ in AD upon PM. So we get AD upon PM whole square. Hence the proof. Now question number 7 is prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equals to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal. यानी एक जो वन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, एक तो उसकी साइड्स के ऊपर बना दी गई और एक इसके डायगोनल्स के ऊपर, स्क्वायर के डायगोनल्स पर. देखिए फिगर किस तरीके से बनेगा. स्क्वायर गिवन आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए स्क्वायर. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गिवन है. एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल आप इस तरीके से इसकी साइड के ऊपर बनी हुई है, इट मीन्स जो स्क्वायर की साइड है वही इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी. इस तरीके से आप बना सकते हैं. नेम दीजिए ABCD इज ए स्क्वायर और BEC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. सो इस ट्राइंगल की जो साइड है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा. नाउ एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है वो डायगोनल्स के ऊपर बना दी. AC इज द डायगोनल. इस तरीके से आप बना सकते हो AC के इक्वल. ये सेकंड इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई. यहाँ पे ACF डाल दीजिए.
ACF and BCE is an equilateral triangle. नाउ हमें क्या चाहिए, इनके एरिया का रेशियो चाहिए या हाफ प्रूव करना है आपको, यानी कि इसका जो एरिया है वो हाफ ऑफ एरिया ACF प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन ABCD is a square and BCE, triangle BCE and ACF are equilateral triangles. To prove area of BCF, area of BEC is half of area ACF. ACF का हाफ प्रूव करना है. लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर ए पुट कर लीजिए स्मॉल ए के अंदर. ठीक है. सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, एसी फाइंड आउट कर लेंगे और जो एसी आएगा वो इस ट्राइंगल की साइड हो जाएगी. इधर ये BCA है तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड AA हो गई. सो यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC. In triangle ABC by Pythagoras theorem, AC its hypotenuse, AC square is equals to base AB square plus perpendicular BC square. So AC square is equals to AB is A square, BC is also A square. A square और A square क्या हो गया 2A square. Then AC is equals to क्या आ जाएगा स्क्वायर फॉर्म में, ये अंडर रूट 2A, ये अंडर रूट 2A आ गई इसकी साइड जो है. नेक्स्ट इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड क्या आ गई अंडर रूट 2A. अब ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स क्या होते हैं सिमिलर. सो इट मीन्स ट्राइंगल BEC similar to triangle ABC. Why? Because both are equilateral triangle. Both equilateral triangle. क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं इक्विएंगुलर्स. इट मीन्स इनके सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. सो इट मीन्स ये सिमिलर हो गए. जब दोनों सिमिलर है तो इनके एरिया का जो रेशियो है एरिया ऑफ BEC अपॉन एरिया ऑफ ABC स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डेंट साइड होगा. स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स रख दीजिए आप. BE अपॉन AB का स्क्वायर. BE की वैल्यू A है, AB इज रूट 2A एंड इट्स होल स्क्वायर. A से A कैंसिल हो गया. नाउ एरिया ऑफ BEC अपॉन एरिया ABC इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और रूट 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ट्रांसफर कर दीजिए ABC का. डिवाइड ट्रांसफर इन मल्टीप्लाई. So we get area of BEC is equals to 1/2 area ABC. Hence the proof. Now question number 8. ABC and BDE are two equilateral triangle. ABC और BDE दो equilateral triangle है such that D is the midpoint of BC. रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BD. ABC और BDE का रेशियो फाइंड आउट करना है. दोनों इक्विलेटरल हैं सो इट मीन्स क्या होंगे सिमिलर होंगे. सो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डेंस साइड पुट करना है. ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सो इट मीन्स ईच एंगल इज 60 एंड D इज द मिड पॉइंट. देन BDE इज अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे आ गई. सो हमें क्या दिखाना है इनकी जो एरिया का रेशियो आपको शो करना है. ठीक है. सो ABC गिवन राइट कीजिए आप. गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE आर इक्विलेटरल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं सिमिलर. सो ट्राइंगल ABC similar to triangle BDE.
और डी यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसका मीनिंग बीड डी इजकल्स टू सी डी हो गया, बीड डी इजकल्स टू सी डी, और बीड डी इज सी डी के इक्वल है, इसका मीनिंग बीड डी इज हाफ ऑफ बी सी, बीड डी इजकल्स टू हाफ ऑफ बी सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी और 2 बी डी। नाउ वो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स, सो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई फाइंड आउट करना है हमें। जब ये दोनों सिमिलर है तो स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स रख दीजिए अब इसको, सो इसको आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन या बी सी अपॉन में बी डी का होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 2 बी डी है, सो 2 बी डी पुट कीजिए यहाँ पे अपॉन बी डी इट्स होल स्क्वायर, स्क्वायर बी डी से बी डी क्या हो गया कैंसिल, देन वी गेट 2 अपॉन 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1 स्क्वायर इज 1, देन वी गेट 4:1। सो इट मीन्स इनमें जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा 4:1। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड आउट कर सकते, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4 और 9, देन एरिया, एरिया क्या होगा बताइए, इन एरियाज का रेशियो, साइड्स का रेशियो क्यों ना, एरियाज का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डेंट, इनका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81। So this is the solution of your exercise 6.4 is completed. Now its examples are very important. This is example number 9 is very important. काफी बार आ चुका है स्टूडेंट्स ये example number 9 and इसके अंदर 6.3 के एग्जाम्पल भी आपको फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 6। These are important examples and example number 8 also. अपनी फेयर नोटबुक में करने ये सभी एग्जाम्पल्स आपको। Now next theorem is Pythagoras theorem. It is very important theorem. 6.8 Pythagoras. इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, अब तक तो आपने रिजल्ट्स यूज किए थे पाइथागोरस थ्योरम को, अब आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डेंस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट